السلام علیکم، ہمارے چینل کی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے سبسکرائب کریں حدیث نبوی یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم دوستو، تبلیغی جماعت کے 20 ٹھکانوں پر ای ڈی کی چھاپے ماری۔ یہ خبریں جو ہے ہمارے میڈیا چینلوں کے اوپر جس طریقے سے ہائی لائٹ کی گئی تو ہمارے ساتھی اس مسئلے کو لے کر بہت زیادہ پریشان تھے، تشویشناک تھے۔ تو کل بھی میں نے مختصر سا ایک کلپ جو ہے آپ تمام لوگوں کو اطمینان دلانے کے لیے کہ بھائی دیکھو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ای ڈی جو ہے گورنمنٹ کا ایک وبھاگ ہے، ایک ادارہ ہے، ان کا کام ہوتا ہے چاہے کوئی کمپنی ہو، انڈسٹریز ہو، کسی بھی قسم کا فائنینشیل جو لین دین ہوتا ہے یہ لوگ اس کی تحقیق کرتے ہیں۔ دعوت کی محنت کو نشانہ بنانے کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش، اور وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر صرف دعوت کی مبارک محنت ہی پورے دنیا کے مسلمانوں کی ایک ایسی محنت ہے جس سے کروڑوں مسلمان بغیر کسی سسٹم کے، بغیر کسی آفس کے، بغیر کسی لکھا پڑھی کے اور بغیر کسی جو ہے آن لائن سسٹم کے اس محنت کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ میں سمجھتا ہوں صرف مسلمانوں ہی نہیں بلکہ دیگر مذاہب کو بھی اگر ہم شامل کر لیں، یعنی پوری دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، سارے مذہبوں کے اندر بھی کوئی بھی تحریک، کوئی بھی محنت اس طریقے کا نہیں ہے جس طریقے کی محنت دعوت و تبلیغ کی ہے، جس کے ساتھ میں پوری دنیا میں اتنے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ اب چونکہ یہ آج سے نہیں چلتے آ رہا ہے، باطل جو ہے نا، باطل ہر زمانے کے اندر مسلمانوں کی ایسی تحریکوں کو، مسلمانوں کی ایسی محنتوں کو توڑنے کے لیے باطل نے اپنا پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہوا ہے، کیونکہ باطل جانتا ہے اس قوم کو اگر قابو میں کرنا ہے تو پہلے ان کو توڑو، ان کے اندر انتشار پیدا کرو۔ جیسے انگریزوں کا فارمولہ ہوتا تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول، وہی فارمولہ اس زمانے میں بھی عمل میں لایا جا رہا ہے۔ تو اب چونکہ میرے محترم دوستو، ہمارا جو کام کرنے والا ساتھی ہے اس کے اوپر یہ فرض ہے، لازم ہے، اس کی ذمہ داری ہے، یہ جو حالات ہے ان حالات سے اس نے متاثر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس نے ان حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ویسا ہی امتحان سمجھنا چاہیے جیسا امتحان ہم سے پہلے اللہ والوں کے ساتھ، بزرگان دین کے ساتھ، صحابہ اکرام کے ساتھ، یہاں تک کہ انبیاء علیہم الصلاۃ بھی جس امتحان کے دور سے گزرے، تو ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہے گا۔ ہر زمانے کے اندر تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، حالات آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، لیکن اصلی جو دائی ہے وہ ان حالات سے ڈگمگاتا نہیں ہے بلکہ استقامت کے ساتھ میں جمع ہوا ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو کارگزاری سناتا ہوں، حالانکہ یہ کارگزاری تقریباً 1 مہینہ پہلے ہی میرے پاس پہنچ چکی تھی، لیکن میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا ہوں کہ میں جان بوجھ کر دعوت کے عنوان پر، مرکز کے عنوان پر اور ہمارے حضرت جی کے حالات پر اس لیے کوئی سبق نہیں بھیج رہا ہوں تاکہ ایک سوئی کے ساتھ میں جو کام چل رہے ہیں وہ چلتے رہے، نہ کسی قسم کا اس میں ہمارے بڑے تو منع فرماتے ہیں نا یہ سب چیزوں سے، تو اس کے لیے ہم جان بوجھ کر ہم نے سوچے جب تک حالات جو ہے سازگار نہیں ہوں گے اس وقت تک اس عنوان پہ کچھ بولنا بھی نہیں ہے۔ تو 1 مہینہ پہلے ہی مجھے یہ کارگزاری پہنچی تھی، لیکن میں ابھی ایسے حالات چل رہے ہیں اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ جو اصلی دائی ہوتا ہے، اصلی دائی وہ استقامت کے ساتھ میں کیسی محنت کرتا ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ باہر کے جو مہمان بھی تھے، جو بیچارے مہمان تھے، جن مہمانوں کو بھی اٹھا کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، تو دیکھو دائی کیسا مستقیم ہوتا ہے، یعنی ثابت قدم ہوتا ہے کہ وہ مہمان جو باہر ملکوں کے جن کے گھروں پہ کیسے وہ جو ہے آرام سے رہنے والے، سکون سے رہنے والے، جن کے کھانے کیسے ہوں گے، جن کا رہنا کیسا ہوگا، جن کے گھروں کے اوپر جو ہے وہ کس طریقے سے زندگیاں گزارتے تھے، ویسے لوگوں کو ہمارے یہاں پہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جب رکھا گیا تو رمضان کا مبارک مہینہ اور اس مہینے کے اندر سحر میں اور افطار میں بیچاروں کو بہت زیادہ تکلیفیں ہوئی،
लेकिन ये सारे तकालीफ को भी वो सहाबा इकराम की सुन्नत समझ कर कि भाई सहाबा के हम जब नाम लेवा है तो वो दौर हमको भी देखना पड़ रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो जेलों के अंदर भी साबित कदमी के साथ में दावत की मेहनत करते रहे, साबित कदमी के साथ में काम करते रहे। तो कुछ कारगुजारियाँ ऐसी भी पॉजिटिव सुनने के लिए मिली कि जेल की सलाखों के पीछे भी बहुत सारों को अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी बरकत से ईमान की हिदायत अता फरमा दी। अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम दोस्तों, तो दाई ऐसा होता है, डगमगाता नहीं वो। अगर जेल की सलाखों के पीछे भी वो दाई गया तो उसने इसको नेमत समझा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी जब जेल की सलाखों के पीछे गए तो सबसे पहला काम उन्होंने दावत वाला ही किया कि लोग उनके पास आते थे तो उन्होंने उनको यही कहा कि देखो मैं दाई हूँ और उसी दाई ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है। मेरे वालिद साहब दाई थे, मेरे दादा भी दाई थे, मेरे परदादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी जो है वो भी दाई थे। तो दावत दी आपने, ईमान की, और उसके बाद लोगों से दूसरे मसलों पे बात की, यानी उनको ख्वाब की ताबीर बतलाई। तो ये भी जो हमारे मेहमान हैं जेल की सलाखों के पीछे गए, वहाँ पे भी इन्होंने दावत के अमल को जारी रखा और वहाँ पे भी जो है हिदायत के चराग जलाते रहे और वहाँ पे भी लोगों के यानी ये ईमान में आने का ज़रिया बने। और मैं तो ये समझता हूँ वो सारे लोगों के मुक़द्दर में हिदायत लिखी हुई थी, इनके ज़रिए से लिखी हुई थी, इसलिए अल्लाह ने इनको वहाँ पे पहुँचाया ताकि उन सब लोगों को हिदायत मिल सके। तो ये निज़ाम है अल्लाह ताला का। तो इसके लिए मेरे मोहतरम दोस्तों, चूँकि इतनी बड़ी ये मेहनत है, अब ये मेहनत के पीछे पूरी दुनिया का बातिल लगा हुआ है, सिर्फ यहाँ का बातिल ही नहीं, पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया के अंदर जो है सबकी नज़रें हैं इस मेहनत के ऊपर, क्योंकि यही तो वो मेहनत है, यही तो वो मेहनत है जिसके ज़रिए से अल्लाह के नबी की वो बात जो है हक़ होने वाली है। मुस्तक़बिल में हम ज़िंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, लेकिन फरमाया था कि बेटी फ़ातिमा एक वक्त ऐसा आएगा दुनिया के हर कच्चे और पक्के मकान में तेरे वालिद का लाया हुआ यह दीन पहुँच कर रहेगा। तो वो बात को हक़ होना है और उस बात को हक़ करने के लिए अल्लाह ने इस मेहनत को कबूल फरमाया है और इसी के ज़रिए से अल्लाह ताला दुनिया के चप्पे चप्पे में, दुनिया के गोशे गोशे में जो है ना, वो अल्लाह के दीन को पहुंचा कर रहेगा, ईमान की मेहनत को पहुंचा कर रहेगा। एक एक घर में, कच्चे पक्के मकान में ईमान को पहुंचना है और वो इसी मेहनत के ज़रिए से पहुंचेगा। तो अब क्या है, बातिल की जो नज़रें हैं वो इस मेहनत पे, इसको कैसे टारगेट किया जाए, इसको कैसे जो है कैप्चर किया जाए। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, हालात आते रहेंगे और इससे भी ज़्यादा बदतर हालात हमारे बड़े, हमारे अकाबिर, हमारे जो पुराने काम करने वाले लोग गुज़रे हैं वो देख चुके हैं। मुल्कों में कैसे कैसे हालात लोगों ने देखे, हमारे अपने मुल्क में मैंने अभी 2 दिन पहले ही मुल्क की आज़ादी के वक्त में किस किस तरीक़े से रोज़ाना मरकज़ निज़ामुद्दीन में आकर जो है पूरी क्या पूरी आर्मी आती थी। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी आप बीती में सारी बातें लिखी है। तो बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, आखिर में मैं अब जो कहने वाली बात कह रहा हूँ, यानी जो बात मुझे कहना था वो ये है कि इन हालात के अंदर भी मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ बातिल हमारी रगें काटने में और हमारी जड़ें खोखली करने में लगा हुआ है, वहीं पे कुछ हमारे अपने भी ऐसे हैं जो ये सारे हालात के अंदर भी, कोई हज़रत जी मौलाना साद साहब की ज़ात को निशाना बना रहा है, तो कोई मरकज़ निज़ामुद्दीन के ऊपर कीचड़ उछालने में लगा हुआ है, तो कोई हमारे अपनों को ही बुरा भला कहने में लगा हुआ है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सब बातें सुनकर। कोई हज़रत जी मौलाना साद साहब, यानी हमारे अपनों में ही अगर ऐसा इंतशार रहेगा तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मुझे आप बताइए हम लोगों में शुऊर, जो जिसे कहते हैं ना शुऊर, मैच्योरिटी, वो हमारी कौम में क्यों नहीं होंगी। और मैं आपको बताता हूँ, हमारे कंपैरिजन में अगर आप देखो बातिल ताकतों में कितना शुऊर है, उनमें आपस में कितना जोड़ है, उनमें आपस में मैच्योरिटी, यानी उनमें इतनी समझ है कि किन मसलों के अंदर हमने एक दूसरे के से इख्तिलाफ़ करना चाहिए और किन मसलों में नहीं करना चाहिए। अभी मैं आपको साफ साफ लफ्ज़ों में बताता हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना ऐसी घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है। मैं अभी आपको साफ लफ्ज़ों में बताता हूँ कि जिस वक्त बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, 1992 का जो ज़माना था, 6 दिसंबर का, उस वक्त में हमने ये हालात देखे थे कि जिन लोगों ने
बाबरी मस्जिद के शहादत का मिशन पूरे मुल्क में चलाया था, रथ यात्रा निकाली थी और उसके लिए जगह जगह पे उन्होंने जो है लोगों को जमा किया था पूरे देश के अंदर। उसमें सबसे पहले नंबर पर थे लाल कृष्ण एडवाणी, उनके साथ में थे मुरली मनोहर जोशी, उनके साथ में थी उमा भारती, उनके साथ में जो है जितने भी लोग उस ज़माने के अंदर थे। अब मैं आपको बताऊं, अब जो राम मंदिर की बुनियाद रखी गई अभी पिछले हफ्ते, अभी थोड़े दिन पहले, ये सारे लोगों में से किसी एक आदमी का भी उसके अंदर नाम नहीं था, कोई भी किसी का भी उसमें नाम नहीं था। लेकिन आपको इस वाक़ये से ये सबक लेना है कि ना लाल कृष्ण एडवाणी ने मीडिया में आकर जो है किसी को बुरा भला कहा और ये कहा कि क्रेडिट तो मुझे मिलना चाहिए था क्योंकि पूरा काम तो मैंने किया था। ना मुरली मनोहर जोशी ने किसी मीडिया चैनल के सामने आकर ये कहा, ना ही उमा भारती ने किसी चैनल के सामने आकर ये कहा या उन्होंने जो है अपने पार्टी की खिलाफ वर्जी की। क्यों? क्योंकि इन लोगों में ये समझदारी, ये मैच्योरिटी, ये अंडरस्टैंडिंग है, इसीलिए आज वो इस पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत कर रहे हैं। इसीलिए मुल्क के आधे से ज़्यादा स्टेट्स के ऊपर उनकी गवर्नमेंट चल रही है। क्यों? क्योंकि उनमें वो लेवल है मैच्योरिटी का, अंडरस्टैंडिंग का, जो आज के जुब्बे पहनने वाले मुसलमानों में भी नहीं है। किसी से अगर ज़र्रा बराबर भी मिजाज नहीं मिल रहा है, फ़ौरन उसकी मुखालिफत करेंगे, बुराइयां करेंगे, उसकी जड़ें खोखली करने के लिए इतनी ऐसी नीच हरकतें करेंगे कि शैतान को भी अपना मुंह छुपाना पड़ेगा। वो बोलेंगे साला मेरे भी बाप दिख रहे ये लोग, तो इतनी ख़तरनाक पॉलिटिक्स तो मुझे भी नहीं आती है। ये जुब्बा पोशों को जितनी ख़तरनाक पॉलिटिक्स आती है, और ये जुब्बा पोश ही एक दूसरे की जड़ें काटने में कैसे लगे हुए हैं। क्योंकि मैच्योरिटी नहीं है हमारे अंदर, समझदारी ही नहीं है कि ऐसे हालात के अंदर लोग मज़ामीन चला रहे हैं हज़रत जी मौलाना साद साहब के ख़िलाफ़, मरकज़ निज़ामुद्दीन के ख़िलाफ़। अभी मैंने कल जो मुख्तसर सा क्लिप अपने चैनल पे अपलोड किया, अभी देखो मैं आपको एक कमेंट जो है स्क्रीन पे ला रहा हूँ, आप पढ़ो वो कमेंट, उसमें क्या लिखा हुआ है। और जिन्होंने ये कमेंट किया हुआ है वो कोई नौजवान छोकरा नहीं है, वो लड़का नहीं है, वो अच्छा खासा उम्र रसीदा आदमी। मैं उस इंसान को जानता हूँ, 60 साल से ऊपर उसकी उम्र है, और देखिए उसने जो है क्या कमेंट किया हुआ है। यानी ये हालात के अंदर भी उसमें इतनी मैच्योरिटी नहीं, इतनी समझदारी नहीं कि मिल्लत का इत्तेहाद, इत्तेफाक कैसे होना चाहिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मुझे बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है। और हम जो है ना, हम इतनी शिद्दत के साथ में उम्मत को मरकज़ से जोड़ने की, या हज़रत जी मौलाना साद साहब से जोड़ने की, या दावत की मेहनत से जोड़ने की जो बात कर रहे हैं, मुझे आप बताओ ना हमारा इसके अंदर क्या फ़ायदा है। इसलिए कि ना मुझे तबलीग का अकाबिर बनने का शौक़ है, ना मुझे कहीं का ज़िम्मेदार बनने का शौक़ है, ना मुझे बयान करने का कंड है कि मेरा बयान जो है तय किया जाए तो मैं बयान करूं वहां जाकर। क्योंकि अल्लाह का फजलो करम एहसान है, मेरा अपना चैनल है, मैं अपने चैनल के ज़रिए से जो मुझे बोलना है मैं उस टॉपिक के ऊपर बोलता हूं, और अल्लाह के फजलो करम से उतने लोगों तक मेरी बात पहुंच जाती है जितने लोगों तक अगर मैं फ़िज़िकल सामने बैठकर बोलूं, उससे 10 गुना ज़्यादा लोग जो है वो चैनल के ऊपर सुन लेते हैं। लेकिन हम इतनी शिद्दत के साथ में ये बात इसलिए करते हैं क्योंकि उम्मत का इत्तेहाद बाकी रहे, उम्मत का इत्तेफाक बाकी रहे, उम्मत जो है मरकज़ के साथ में जुड़ी रहे, उम्मत जो है वो दावत की इस मुबारक मेहनत का जो ताकत है, ताकत पूरे आलम के अंदर, ये शिराज़ा हमारा बिखेरना नहीं चाहिए। भले हमारे कुछ इख्तिलाफात जो है अपने नज़रियात के हो, अपने ख़यालात के हो, वो सहाबा इकराम के ज़माने से चलते आ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ये समझदारी ज़रूरी है कि भाई ऐसे हालात के अंदर हमारी वो ताकत, वो मेहनत, जिस मेहनत के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पूरे आलम के अंदर अल्लाह के नबी की वो जो हदीस और वो जो बशारत है वो अगर पूरी हो सकती है तो इसी मेहनत के ज़रिए से, तो फिर हम इस मेहनत के साथ इत्तेहाद, इत्तेफाक के साथ में जुड़े क्यों नहीं रह सकते हैं। ये मैच्योरिटी आज के मुसलमानों में नहीं है, ये समझदारी मुसलमानों में नहीं है, इस बात का शुऊर ही नहीं है कौम को कि इत्तेहाद और इत्तेफाक कितना ज़रूरी है। लोग अपने छोटे छोटे इख्तिलाफात को लेकर, छोटी छोटी बातों का जो इख्तिलाफ है, और वही मैंने आपको बताया हूँ
کہ جن لوگوں نے بابری مسجد کی شہادت کے لیے پورے ملک کے اندر ایک کیمپیننگ چلائی تھی اور جن لوگوں کی وجہ سے آج جو ہے وہاں پہ رام مندر کی بنیاد رکھی گئی، وہ سارے لوگوں کو اس کے اندر انویٹیشن نہیں دیا گیا، اس کے باوجود کسی کی زبان پہ حرف شکایت نہیں ہے۔ یہی تو ریزن ہے، یہی تو وجہ ہے ان لوگوں کے اقتدار میں آنے کی، اور یہی تو وجہ ہے ان لوگوں کے جو ہے پورے ملک کے اوپر حکومت کرنے کی، کیونکہ ان میں وہ میچورٹی ہے اور ہمارے اندر نہیں ہے، اسی لیے ہم جوتے کھا رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔